Namaste, Hamisa Khusrao Bitiao, myself Dr. Hina Mewada, Assistant Professor, Department of Prasuti and Stri Rog, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. In today's session, I am going to discuss about anatomy of uterus. The synonym of uterus is hystera and womb. Hystera and womb is Greek word and uterus is Latin word. Uterus is a childbearing organ in female. It provides a suitable site and environment for implantation of a fertilized ovum and development of embryo. It is a pyriform hollow muscular organ situated in the pelvis between the bladder in front and rectum behind. ये डायग्राम यूटेरस का है जो पायरिफॉर्म शेप का होता है और होलो होता है, मींस कैविटी प्रेजेंट होती है और मस्कुलर ऑर्गन है यानी मसल्स का बना हुआ है. ये डायग्राम शो कर रहा है इसके फ्रंट में ब्लैडर होता है, देन यूटेरस और यूटेरस के बिहाइंड में रेक्टम होता है. It measuring around 8 into 5 into 1.5 centimeter in the longitudinal, transverse and anteroposterior diameter. Its weight varies from 50 to 80 gram. It is slightly larger in the multipara than in nullipara. Position of uterus is anteversion, anteflexed. When the long axis of the cervix is normally bent forward on the long axis of the vagina and forming an angle of 90 degree, then it is called anteversion. The long axis of the body of uterus is bent forward at the level of isthmus on the long axis of cervix and forming an angle of 120 degree, then it is called anteflexion. इस डायग्राम में देख सकते हैं ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस है, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ विजाइना है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल में होते हैं दोनों. तो ये एंटीवर्जन पोजीशन है जो कि नॉर्मली होती है और एंटीफ्लेक्शन में लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूटेरस लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स के साथ एंगल बनाता है जो कि 120 डिग्री होता है. नाउ पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी और कार्पस, स्टेमस एंड सर्विक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी और कार्पस. बॉडी और कार्पस फर्दर 3 पार्ट होते हैं, फंडस, body proper and cornua. The part which lies above the opening of the uterine tube called fundus. ये part fundus है जो कि uterine tube से ऊपर वाला होता है. Body proper triangular and lies between the opening of the tube and stemmus. ये triangular portion body proper है जो कि uterine tube से stemmus के बीच का होता है. And cornua, superolateral angle of the body of uterus project outward from the junction of the function and fundus and body. तो ये फंडस और बॉडी के बीच का जो सुप्रोलैटरल एंगल है यूटेरस का वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट होकर कॉर्नुआ बनाता है. कॉर्नुआ से 3 स्ट्रक्चर्स अटैच होती है, राउंड लिगामेंट एंटीरियरली, फैलोपियन ट्यूब सेंट्रली एंड ओवेरियन लिगामेंट पोस्टीरियर. Second part is isthmus. Isthmus is a constricting part measuring about 0.5 centimeter. ये isthmus का पार्ट है, ये cervix है और ये बॉडी है, ये fallopian tube, ovary. isthmus जो है वो बॉडी और cervix के बीच का पार्ट है और ये लिमिटेड होता है above anatomical internal os से और below histological internal os से. It is lined by low columnar epithelium. The isthmus expands during pregnancy, forming the lower uterine segment 10 cm during the last trimester. यही isthmus pregnancy में lower uterine segment form करता है during second stage of labor. ये around 10 सेंटीमीटर हो जाता है जो कि 0.5 सेंटीमीटर नॉन प्रेग्नेंट में होता है. थर्ड पार्ट इज सर्विक्स. Cervix is cylindrical lower part of uterus. It measuring about 2.5 centimeter. It is divided by the vaginal attachment into supravaginal portion and vaginal portion, also called portio vaginalis. Cervical canal is the cavity that communicate above the uterine cavity and the internal os.
at the internal os and below with the vagina at the external os. The external os is round in nullipara and slit shape in multipara because of tear. The cervical mucosa has two ridge anterior and posterior, from which transverse ridge radiate to form the arbovitae uteri. Now, relations of the body of uterus. Anteriorly, body of uterus is related with above uterovesical pouch and below by the urinary bladder. इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पेरिटोनियम है जो कि ब्लैडर और यूटरस के बीच में ये यूटेरोवेसाइकल पाउच बनाती हैं. तो अबोव वाला पोर्शन जो है वो यूटेरोवेसाइकल पाउच से रिलेटेड होता है और बिलो वाला पोर्शन ब्लैडर से लूज एरियोलर टिश्यू के थ्रू जुड़ा होता है. Posteriorly, pouch of Douglas with coils of intestine. ये intestinal coils है, ये pouch of Douglas है. Pouch of Douglas जो है वो वही पेरिटोनियम के फोल्ड से बनता है. ये पेरिटोनियल फोल्ड यूटरस और रेक्टम के बीच होता है और लेटरली ब्रॉड लिगामेंट, मैकेनरोड लिगामेंट यूटेराइन आर्टरी और यूरेटर से जुड़ा होता है. ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये यूरेटर है, ये यूटेराइन आर्टरी है और ये साइड में मैकेनरोड लिगामेंट होते हैं. तो ये यूटेरस के लेटरल रिलेशंस हैं. नाउ रिलेशंस ऑफ द सुप्राविजाइनल सर्विक्स. एंटीरियरली यूरिनरी ब्लैडर से, पोस्टीरियरली फ्रॉम द एंटीरियर वॉल ऑफ पाउच ऑफ डगलस, laterally half an inch lateral to the internal os, the ureter is crossed by the uterine artery, that is ureter below the uterine artery. The uterosacral, cardinal and pubocervical ligament are attached to its posterior, lateral and anterior surface respectively. ये मैं supports of uterus में further detail में discuss करूँगी. Now structure. जो बॉडी है वो उसमें 3 लेयर्स होती है, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. पैरामेट्रियम सीरस कोट होता है जो कि पूरे ऑर्गन को इन्वेस्ट करता है एक्सेप्ट लेटरल बॉर्डर. लेटरल बॉर्डर पे ये नहीं होता है. सेकंड मायोमेट्रियल लेयर है, ये थिक बंडल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, मिडल इंटरलेसिंग मसल और इनर सर्कुलर मसल बनाता है. थर्ड इज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो है म्यूकस लेयर होती है. यूटेरस में सब म्यूकस लेयर नहीं होती है, ये 2 में डिवाइड होती है, सरफेस एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोपिया. इसमें स्ट्रोमल सेल और एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है, वेसल्स और नर्व होती है. एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी में डेसिडुआ के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें सिक्रेटरी चेंजेस ज्यादा आ जाते हैं और इसका जो सिक्रेशन है वो स्कैंटी और वाटरी होता है. नाउ कैविटी ऑफ द यूटेरस. यूटेराइन कैविटी is small in comparison to its size due to its thick muscular wall. क्योंकि मसल वॉल जो है वो थिक होती है इसलिए कैविटी स्मॉल होती है. ये 2 में डिवाइड होती है, यूटेराइन कैविटी और सर्वाइकल कैविटी. तो जो it is triangular in coronal section, uterine cavity. The apex of this cavity is continuous below with the cervical canal. ये इसका apex है जो cervical canal से continuous होता है. The implantation commonly occur in the upper part of its posterior wall. It is slit in sagittal section because uterus is compressed anteroposteriorly and its anterior and posterior wall are almost in contact. Now cavity of cervix, cervical canal. It is a spindle shaped canal being border in the middle and narrow at the end. It communicates anterosuperiorly with the cavity of body of uterus through the internal os and inferiorly with the cavity of vagina through external os.
और ऑस्टियम यूटेराई। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं ये स्पिंडल शेप होती है, ऊपर से ये यूटेराइन कैविटी से और नीचे से विजाइना से कनेक्ट होती है। इन नल्लीपैरस women who have not given birth to a baby, the external os is smaller and circular. नल्लीपैरस में एक्सटर्नल os स्मॉलर होगा और सर्कुलर होगा, और मल्टीपैरा में ये स्लिट लाइक होगा, लार्ज और ट्रेन होगा। Now blood supply and nerve supply of the uterus. Arterial supply of uterus is uterine artery and ovarian and vaginal artery. Uterine artery is the branch of internal iliac artery. Venous drainage is internal iliac vein. Now lymphatics. Body, pre-aortic and lateral aortic group of gland. Cornua, superficial inguinal gland, and in lower part external iliac glands are drained. Nerve supply, mainly uterine supply is sympathetic system and partially parasympathetic system. In Ayurveda, it is known as गर्भाशय। आचार्यों ने टोटल 7 आशय बताए हैं और सुश्रुत ने 8वां आशय गर्भाशय कहा है। तो इसमें लिखा है स्त्रीणाम गर्भाशय अष्टम इति। गर्भाशय जो है वो 8वां आशय है। इसके सिनोनिम धरा और गर्भ शैया है। गर्भ शैया सुश्रुत ने कहा है, धरा सारंगधर और भाव प्रकाश ने इसको नाम दिया है। इसकी डेफिनेशन है, गर्भाशय 2 वर्ड से बना है, गर्भ और आशय मीन्स द ऑर्गन दैट होल्ड द गर्भ, द फिटस कॉल्ड गर्भाशय, यानी यत्र गर्भ तिष्ठति स गर्भाशय। अब सिचुएशन की बात करते हैं, तो आचार्यों ने इसकी सिचुएशन बताते हुए कहा है, पित्त पक्वाशयोर मध्य गर्भशय्या यत्र गर्भ तिष्ठति, यानी पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य गर्भशय्या होती है और यहाँ पर गर्भ रहता है। पित्ताशय स्मॉल इंटेस्टाइन है और पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन है। गर्भाशय अष्टम स्त्रीणाम पित्त पक्वाशय अंतरे, इसी तरह अष्टांग हृदय ने भी कहा है। और आचार्य काश्यप ने इसको विपुल कुंडल जो स्रोत है उसमें स्थित बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने ही इसको योनि के तीसरे आवर्त में स्थित बताया है। और कहा है, शंखनाभ्य आकृति योनि त्रयावर्ता सापत्यता तस्य तर्त्यत्वार्थे गर्भशय्या प्रतिष्ठित, यानी शंखनाभि की आकृति योनि की होती है और उसमें 3 आवृत होते हैं और उसके तीसरे आवृत में गर्भशय्या होती है। आचार्य काश्यप ने कहा है कि जो गर्भाशय है वो जरायु से कवर होता है, इसको हम पेरिटोनियम मान सकते हैं। तेषाम अधस्ता विपुल स्रोत कुंडल संस्थितम, यानी उसके नीचे विपुल स्रोत कुंडल में गर्भाशय स्थित होता है। जरायु नाम परिवितम, और ये जरायु से परिवित होता है या कवर्ड होता है। इसकी शेप बताते हुए डलन ने कहा है, यथा रोहित मत्स्यस्य मुखम भवति रूपता तत्संस्थाना तथा रूपा गर्भशय्या विदुर्भूता। तो इसकी जो आकृति है वो रोहित मत्स्य के मुख से उस मुख सदृश बताई है जो रोहित मत्स्य का मुख होता है उस तरह। तो आचार्य डलन ने कहा है, रोहित मछली का मुख अल्प मुख अंतः महासुशिर होता है, यानी मुख तो बड़ा छोटा सा होता है लेकिन अंदर सुशिर होता है, महासुशिर, यानी अंदर होलो होता है। तो हम मॉडर्न में भी देखते हैं कि यूटेरस होलो ऑर्गन है और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और उसका ओस एक तरह से जो मुख है वो बहुत ही छोटा है। तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसकी ब्लड सप्लाई आचार्यों ने रजोवा सिरा से बताई है। यहीं पे यूटेरस की एनाटॉमी खत्म होती है। So thank you for listening me. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session.
If you have any queries, please write in comment box, so I will resolve it. Thank you so much.